चलें सही है। जी हम न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल आपको वीडियो से दिखाता हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो हार्ड फॉर्म इस टाइम नहीं है, लेकिन उसके इस टाइम मैंने क्लियर हो गया तो फिर आप ये न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। वो 2 मासेस के बेसिस पे होगा, इसमें क्या है 3 मासेस हैं, तो ये 3 मासेस के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, वो 2 मासेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। तो पहले मेरे ख्याल 2 मासेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल करना चाहिए, फिर हम 3 मासेस पे करेंगे। तो 2 मासेस का आप देख लें वीडियो में, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछना। To understand the problem of 2 degree of freedom system, let's solve a simple problem. अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बताया हुआ है यहाँ पर, कौन सा है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। In my problem, I have अब यहाँ पर क्या है, मास 1 m1 है और m2 है, तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 गिवन है। तो हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को पूरे को सॉल्व करना है और हमने इसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, कौन सी होगी। तो इसको हम किस तरह करेंगे, जो अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी के बेसिस पे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्टम डिफाइन करेंगे। सिस्टम डिफाइन होने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करेंगे, जैसे हम करते हैं। फिर हम कंसीडर करते हैं कि हार्मोनिक मोशन है। consider 2 masses m1 and m2 of magnitude 8 kg and 3 kg and 2 spring elements of stiffness 1000 Newton per meter and 500 Newton per meter. So as a conventional process, first I have to make the equation of motion of this system, and for that purpose first I have to make the free body diagram of the 2 masses. So let's assume that the mass is moving in this direction with an acceleration x1 double dot, and these 2 spring forces are acting opposite to the direction of the motion of the mass. This force is k1 x1 and the second force is k2 x1 minus x2. Similarly, for the second mass, if the mass is going in this direction with an acceleration x2 double dot, there will be only one force on this side and there will not be any force on the other side. When I will apply the D'Alembert principle and I will write the equation of motion, I will get m1 x1 double dot plus k1 plus k2 x1 minus k2 x2 is equal to 0. It is corresponding to the first mass, and similarly I will get the second equation, that will be m2 x2 double dot minus k2 x1 plus k2 x2 is equal to 0. Now to move further, I have to use a generalized solution for the 2 displacement, and here I have considered harmonic solution for both the masses. For the first mass it is x1 cos omega t, for the second mass x2 cos omega t. x1 and x2 are the 2 constant and basically indicating the magnitude of the vibration. Omega representing the frequency of oscillation. अब Please वापस क्या है, हार्मोनिक को लिया गया है यहाँ पर, हम जैसे हमने थ्योरी में कहा हार्मोनिक में कंसीडर किया है, तो हार्मोनिक करके हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया है। तो हमने क्या किया, हार्मोनिक वाइब्रेशन है तो हमने क्या करना है, हमने इसको हार्मोनिक करके इसका हमने डेरिवेटिव लिया गया है। तो हम फर्स्ट टाइम लेंगे डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस x1 ओमेगा कोस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो x1 डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन ने पुट कर लिया है अगेन। ठीक है, इसको सिमिलरली इस कंडीशन के लिए भी यही किया गया है। तो यहाँ पास इसमें क्या है m1, तो इसमें क्या है x1 माइनस में हो जाएगा माइनस m1 x1 ओमेगा स्क्वायर
cos ओमेगा टी, तो हमारे पास cos ओमेगा टी को कॉमन लेके बाद में कैंसिल किया गया है, तो ये हमारे पास m1 x1 स्क्वायर यहाँ से आ गया है. Understand that I have considered the frequencies same for both the masses. So now when I will put this general solution into my governing equation, my equation will further simplify with this expression that minus m1 omega square capital X1 plus k1 plus k2 capital X1 minus k2 x2 is equal to 0, because when I will put the x value into these two equations, the cos theta term will be eliminated and I will get the first equation without the cos omega t term. Similarly, I will get the second equation, and when I will rearrange all these terms, I will get a matrix form of these two equations, where the first term is minus m1 omega square plus k1 plus k2 minus k2 and minus m2 omega square plus k2. Second, I am having a displacement vector denoted by capital X1 and capital X2. Now this is my characteristic equation, and I know that I can get a trivial solution by assuming that x1 and x2 are 0, but that will not serve the purpose. So I will consider that the determinant of this matrix will be 0, and when I will use all the numerical values and I will put the numerical value in this determinant, I will get this expression, and when I will solve the determinant, I will get a quadratic equation in terms of omega square. When I will solve the quadratic equation for keeping that omega square is my variable, I will get two roots of this equation. One is the omega 1 square and second one is the omega 2 square, and value of these two roots are 74.49 and 279.69. These two roots are nothing but the two natural frequency of my system, and when I will take the square root, I am getting that the first natural frequency is 8.63 radian per second and the second natural frequency is 16.72 radian per second. After getting the two natural frequencies, the next job will be to put these two natural frequency into back to the governing equation and try to find out the value of x1 and x2. So here I am having two governing equation. So now the question arises that whether I should put the omega 1 value in the first equation or in the second equation. But let me tell you that both the equation will give the same result, and we can check here. So for checking, I am putting the omega 1 value into my first equation and I am getting this expression, and when I am solving this expression, I am getting a ratio x2 by x1 is equal to 1.8. Similarly, when I putting the omega 1 value into my second governing equation, this is represented by this equation, and again I am getting the same ratio x2 by x1 is equal to 1.8. So now we can see that either we will put the value in first or second equation, we are getting the same expression for x2 by x1, and this x2 by x1 just represent the motion of the two masses when the system is vibrating with frequency omega 1. We call it this is the normal mode or the pattern of vibration of our system, and it indicates that if the first mass is moving with an amplitude 1, the second mass will move with an amplitude 1.8 times of the first mass. So please keep it in mind that these two values are not the absolute value, but we are getting the relative value. Similarly, when I will put the second natural frequency into any of these governing equation, I will get a ratio x2 by x1 is equal to minus 1.47. Here, minus sign indicate that if my first mass is moving with an amplitude 1, the second mass will move with an amplitude 1.47 but in opposite direction, and this is my second normal mode. After getting the two normal modes, the next job is to find the actual response of your system, and for that purpose we have to understand that if the body or if the system is moving with the first natural frequency, the system will behave with a unique solution that indicate that if the first mass will move 1 unit and the second mass will move 1.8 unit, and both the masses will move in the same direction.
If the system is moving with the second natural frequency, the unique solution will be that the first mass will move with the 1 unit and the second mass will move with the 1.47 times of that, the displacement of first mass, but in the opposite direction. Now if I am having any arbitrary excitation to my system, for example, that if this is my system and I am giving an initial displacement x2 naught to my second mass, then what will happen? In such case, your response will be the contribution of both the masses, both the modes, and that's I am representing that the x1, this is the contribution from the first mode and this is the contribution by the second mode. Similarly, the response of the second mass will be the contribution of x2 for the first mode and x2 for the second mode. When I will put the solution, or I will extend this equation, I will see that the x1 cos omega t plus phi 1 and x1 for the second mode cos omega 2t plus phi 2, where omega 1 is the first natural frequency, omega 2 is the second natural frequency, phi 1 and phi 2 basically representing the ratio or the contribution. Similarly, for the second case, I am having x2 for the first mode cos omega 1t plus phi 1 and x2 for the second mode cos omega 2t plus phi 2. When I will rearrange this equation, I am getting that the x1 will be x1 cos term plus x1 for the second mode cos term, and now what I am doing, I am replacing this x2 value or the magnitude of the second mode with the calculated mode shape corresponding to the first mode as well as for the second mode. For example, if I am taking the ratio is R1, my x2 will be for the first mode will be R1 times of x1 for the first mode. Similarly, here I am getting that x2 will be for the second mode will be R2 times of x1 of second mode. So by putting these two values or replacing that x2 for the first mode and x2 by the second mode, I am having these two equations, and in this equation I can see that there are four unknowns, 1, 2, 3 and 4. Remaining terms as omega 1 and omega 2 I have already calculated. What R1 and R2 is already calculated. These two are nothing but the ratio of the two displacement corresponding to the two different normal modes. So after getting this equation, that is x1 and x2, when I will put the R1 value and the R2 value into these two equations, and I will solve the 4 equation by taking some initial value, I will get my solution. Here I am considering that if this is my system where masses are 8 kg and 3 kg, these are the 1000 Newton per meter and 500 Newton per meter are my stiffness, and I am assuming an initial condition that my first mass having zero displacement, but it is having a velocity of magnitude 1 at initial time t is equal to 0. For the second mass, no displacement and no velocity. So now when I will use the first equation and I will put t is equal to 0, it will be 0. Here t will be 0, so cos phi 1 and cos phi 2 and my x1 for the first mode and x1 for the second mode. This will be my equation. When I will put the second value into my second equation, I am getting this expression that no displacement, R1 x1 cos phi 1 and R2 x1 for the second mode cos phi 2. Similarly, when I will differentiate these two equations and I will put the two velocity value, I am getting this expression that for the first mass my velocity is 1. After differentiating, I am getting at a minus x1 for the first mode omega 1 sin phi 1 minus x1 for the second mode omega 2 sin phi 2, and the fourth equation which is corresponding to the second mass, zero velocity, I am getting this expression. So now I am having 4 equation 1, 2 and 3, 4 and 4 unknown as first mode x1, second mode x1, phi 1 and
phi 2. So when I will solve the first two equation, I am getting a value that my phi 1 and phi 2 both will be of pi by 2 magnitude, and when I will put this pi by 2 magnitude of phi 1 and phi 2 in my equation 3 and 4, I am getting these two equation, and by solving these two equation I am getting a value x1 for the first mode is minus 0.052 and second mode minus 0.033. So now when I will put these two values as well as these two phi's into my actual two governing equation, I am getting this expression which is representing the response of the two masses. And तो सिंपली हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारी क्वेश्चन थी, तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। देखें for the different time instant, and this t value is nothing but when I will put a value of, let's I want to find the response of the system for t is equal to 0.2 second, I can put t is equal to 0.2 in this equation, and I will get a magnitude of x1 as well as I will get a magnitude for x2, and these two value will tell me that if my system is vibrating with an initial velocity 1, after 0.2 second the position of the first mass will be represented by the response of the first mass, and the position of the second mass will be represented by the response of the second mass. Thank you. तो होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम, ये वाला, हाँ ये वाला जो हमने अभी हम करेंगे, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के बेसिस पे है, जो उसकी थ्योरी पढ़ी थी उसी के बेसिस पे आगे ये किया गया है। तो अब हम स्लाइड वाले न्यूमेरिकल पे वापस आ जाते हैं। स्लाइड वाले न्यूमेरिकल में क्या था, ये हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस भी किया था, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो दोबारा मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, फाइंड द वाइब्रेशन रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 5.3 है। 5.3 कौन सी थी, जो हमने थ्योरी की थी उसी के बेसिस पे ये इक्वेशन है, ये वाली। तो 5.3 है, ये वाली डायग्राम है, तो ये वाला सिस्टम है। तो मीन हमारी इक्वेशन जो यूज होंगी, जो इसी में यूज हुई हैं वही यूज होंगी, ठीक है। शोन इन फिगर 5.3 है विथ K1, अब K1 की वैल्यू गिवन है हमें 30, K2 की 5 और K3 की 0। इसमें यूनिट आपको गिवन होगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन वैसे आपको यूनिट गिवन होगा। M1 इज इक्वल 10 kg, M2 इज इक्वल 1 kg और C1 C2 C3 नहीं है, कोई भी टेम्पर हटा दिया गया है, तो हमारे पास ये क्या होगा, अनडैम्प सिस्टम होगा, क्योंकि C1 C2 C3 0 है। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है x1 0 इज इक्वल टू 1, x डैश 0 इज इक्वल टू x2 0 इज इक्वल टू x डैश 2 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो अब हमने सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। तो हमने क्या करना है, पहले इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास नॉर्मली करते आते हैं सिस्टम के मुताबिक। इस तरह की इक्वेशन डिफाइन की जाएगी हम करेंगे। पहले ये इक्वेशन डिफाइन करके, ये हमने इक्वेशन डिफाइन करनी है फॉर दी सिस्टम, तो उसके बेसिस पे हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ दिस और इनटू x1 और x2 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ से आएगी, x1 और x2 मल्टीप्लाई में एक वेक्टर मैट्रिक्स हम डाल देंगे x1 और x2, ठीक है। x1 कॉलम में आएगा और x2 भी कॉलम में आएगा, तो वहाँ पर हम लिखेंगे x1 और x2 इज इक्वल टू 0। हम नहीं ले सकते क्योंकि ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें वाइब्रेशन 0 हो जाएगी, तो हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन लेंगे। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट है न्यूमेरिकल हमारा।
तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, जिसकी वजह से हम सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन है, बस न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या गिवन है वो सारी पुट करेंगे। m1 हमें गिवन है, कितना है, m1 गिवन है हमारे पास जो है m1 10 kg है, और k1 कितना है, k1 30, और ये कितना है 5, ठीक है। तो -10 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 25, ये 30 प्लस 5 तो 35 हो जाएगा, तो प्लस 35। सिमिलरली k2 कितना है, तो k2 -5 हो जाएगा, इस तरह -5, और ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो m2 कितना है 1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपस क्या -m2 ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2, k1 कितना है, ठीक है। तो आपस k1 और k2 की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये आप देख लें अगर मिस्टेक है, और k2 बल्कि और k3 लिखेंगे। k2 कितना है 5 है, और k3 0 है, तो 0 प्लस 5 तो 5 हो जाता है, तो आप 5 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करके खुद भी देख लेना क्या ये सही है या नहीं, अगर मिस्टेक हो तो आप करेक्शन कर लेना। तो इसका x1 और x2 इज इक्वल टू 0। फिर हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट किस तरह आया है इसका और वैल्यू किस तरह आई है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट है, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्म में, फिर आप बताएंगे कि -b प्लस -√b² 2ac जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ओमेगा 1 जो हमारे पास आ जाएगा 1.5811 और ओमेगा 2 2.4495। तो इसके आप यूनिट भी लिखेंगे, यहाँ पर ये बात नोट की जाए, यूनिट मेंशन नहीं है, लेकिन यूनिट्स की कुछ मार्क्स होती हैं, तो आपने यूनिट मेंशन लाजमी करने हैं। हमारे पास नॉर्मल मोड के लिए हमारे पास आइजन वैल्यू जो हमारे पास लेते हैं, नॉर्मल मोड के लिए हमारे पास क्या करना है, ओमेगा की वैल्यूज पुट करनी है, और x1 को हमने लेना है। पहले हमने क्या करना है, ओमेगा 1 की वैल्यू ये लेनी है 1.58 करके। तो अब आपने क्या करना है, ओमेगा 1 की वैल्यू पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें, यहाँ पर देख लें, तो हमने इसकी में पुट करनी है ओमेगा 1 की इसमें और इसमें, ठीक है। तो ओमेगा 1 के लिहाज से हमारे पास क्या करेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1.5811, तो 1.5811 करके इसमें पुट करेंगे, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या है 2.5, तो 2.5 या -25 प्लस 35, तो ये 10 हो जाएगा, बच जाएगा 10x1 और -5x2 इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरह हमने 2.5 इसमें लिखना है, तो -5x1 और 2.5 और +5 तो +2.5x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो उसमें से x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगे 1 और 2। सिमिलरली आपने ओमेगा 2 स्क्वायर के लिए निकालनी है या ओमेगा 2 के लिए, तो आप दोबारा यही स्टेप रिपीट करेंगे, इसमें पुट करेंगे आंसर। तो आप पास x1 और x2 की इक्वेशन बनेगी, ये आपने डिटेल स्टेप शो करने होंगे, यहाँ पर डायरेक्टली शो है, तो आपने ओमेगा 2 की वैल्यू आपको आ जाएगी। ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई, तो उसमें हमारे पास x1 और x2 दोनों ओमेगा के लिए मिल गए, ये ओमेगा 1 के लिए था, ये ओमेगा 2 के लिए था। तो हमें 2 ओमेगा थे हमारे पास, उसके लिए हमारे पास x1 की नॉर्मल मोड्स की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास 2 मोड्स बन गए। अब हमारे पास कितने मोड्स बन गए, 2, तो दोनों की वैल्यूज ये अपनी अपनी आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, फ्री वाइब्रेशन की इक्वेशन जो हमने 5.15 पढ़ी थी, तो उसमें हमारे पास हमने ये इक्वेशन पुट की है ओमेगा टी वगैरह की सबकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1t, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो हमने उसमें ये इक्वेशंस पुट की हैं, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, अब इनिशियल कंडीशन पुट कर रहे हैं जो हमें गिवन है, x1t 0, जब टाइम 0 है तो x1 कितना है 1 है, तो ये कंडीशन पुट करके जैसे हम मेथड फॉर्म में करते हैं, तो ये 4 इक्वेशन थी हमारे पास जो हमारे पास ये ऑब्टेन हुई थी। इससे हमारे पास कौन सी ऑब्टेन हुई थी, ये 4 इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी, कौन सी, ये वाली। तो इसमें हमने ये आंसर पुट किया, ये वाली इक्वेशन से हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास ये इक्वेशन आई थी 4। तो हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया इसमें जो है ये हमने कंडीशन पुट की है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट कंडीशंस पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशंस इसमें पुट कर ली हैं।
तो इससे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। x1 cos phi 1 इज इक्वल टू 5/7, इस तरह x1 2 cos phi 2 2/7, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें से और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये आपस में कैंसिल होते हैं या क्या होते हैं, देखें किस तरह होता है। तो मैं कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास x1 sin phi 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x1 2 sin phi 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप डिटेल स्टेप शो करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली है लेकिन आपने डिटेल स्टेप शो करने होंगे। तो ये करके हमारे पास इक्वेशन 12 और 13 में से हमारे पास क्या मिलेगा, जब हमारे पास ये सॉल्व करेंगे तो x1 कितना है 5/7 है और x1 2 कितना है 2/7, cos 5 को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा 5/1 5/2, ये 0 0 मिल गया। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास है, जहाँ पर ये वाली इक्वेशन थी इसमें x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी इक्वेशंस आ जाएंगी। होपफुली ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो भी पूछ लेना, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें और देखें इस तरह के और कोई न्यूमेरिकल हैं बुक में, अगर हैं तो उन्हें भी आप सॉल्व करें। लेकिन ये मेक श्योर करना कि फार्मूला जो हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई और फार्मूला यूज़ हो रहे तो आपको समझ में ना आए। तो जो मैं वही दे रहा होता हूँ, फार्मूलाज वही यूज़ हो रहे होते हैं, खाली कॉन्सेप्ट थोड़ा, या कॉन्सेप्ट भी वही यूज़ हो रहा होता है या फार्मूला भी वही यूज़ हो रहे होते हैं, खाली मेथड में हो सकता है ऊपर नीचे स्टेप हो जाएं या थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाए या तो टू न्यूमेरिकल कंबाइन हो जाए। तो मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये टॉपिक है मल्टी डिग्री फ्रीडम का, तो उसके ये हमने दो न्यूमेरिकल आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन भी हुआ था, जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ था, खैर ये मैंने कर दिया है आपके भले के लिए, आपको रिकॉर्ड के लिए। जैसे कि आपका टाइम कम है, जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना तो वो भले देख लें यहाँ से। तो आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन एक तो इस लिहाज से है और एक वीडियो भी है, उसमें भी आप देख लेना। तो हर एक बुक ने अपने अपने लिहाज से डिफाइन किया हुआ है, इसको कर दिया हमने। फिर हमने क्या किया है, दो न्यूमेरिकल्स किए हैं जो बुक में है या नहीं देख लेना। तो आप ये सेशन इतना ही है। तो फर्स्ट मोड सेकंड मोड फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो एक न्यूमेरिकल इसमें भी एक है, तो देख लेना ये वाला भी अगर हो सके तो या आपने वही कर लिया वो भी काफ़ी है। तो एक ही बात है, तो देखिए फर्स्ट मोड सेकंड मोड करके इस तरह डिफाइन किया गया है। ओके, तो बुक का मैं दिखा देता हूँ, बुक में सेम है या चेंज है, मेरे ख्याल में चेंज ही है।
तो डेरिवेशन तो यहीं से की गई है, ठीक है। डेरिवेशन की डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, इनिशियल कंडीशन किस तरह ले रहे हैं वो भी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये 5.1 न्यूमेरिकल है, इसी के बेसिस पे आप भले ये देख लें न्यूमेरिकल। तो आप भले 5.9 इक्वेशन 9 या याद करें, बात सही है। तो इस तरह न्यूमेरिकल हमने ये वाला किया था अभी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, ये आप देख लेना। सेशन यहीं तक है, कल इंशाल्लाह देखते हैं टॉर्शनल सिस्टम पढ़ लेंगे, इस पे भी 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये सेशन यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।